بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی شاندار، بہت ہی جاندار ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ کے خطاب کی ہے۔ یہ خطاب انہوں نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس میر پور آزاد کشمیر میں فرمایا۔ اس اور قوم کا بھی حال کوئی نہیں، اور کیا جناب ہمارا فلاں آ رہا ہے اور جناب مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا فلسطین فتح کر کے آ رہا ہے، جیل سے آ رہا ہے، قوم کی خدمت کر کے آ رہا ہے، وہ تو وہاں KFC برگر اور جناب میکڈونلڈز اڑا کے آ رہا ہے۔ یہ قوم کا مہمان ہے، یہ تو بھیڑیا ہے، بھیڑیا بھی جڑا ہو جائے تو وہ شکار کرتا ہے، اندر شکار چھوڑ دیتا ہے، اللہ نہ کرنے لگ جاتا ہے غاروں میں بیٹھ کر۔ یہ تو وہ بھیڑیا ہے جس کے دانت گر چکے ہیں، لیکن قوم کا خون پیسنے کے لیے نواز شریف کو پھر لے کر آئے ہیں۔ اور قوم بھی بڑی سادہ ہے، راجی نواز شریف کو کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں نواز شریف کو کیوں لائے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کی گلیوں کوچوں میں صرف ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج فلسطین میں ہو رہا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اشارہ کر کے کہتی ہیں اور مسلمانوں، وہ 2 ارب مسلمانوں، پونے 2 ارب مسلمانوں، 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں، ذرا ادھر غور کرو، یہ تمہارا بیت المقدس ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ اگر کوئی ایک محمد عربی کا غلام دین کو تخت پر لا کر کسی ایک ملک کے اندر بھی ہوتا تو آج فلسطین کی بچیوں کو، آج کشمیر کی بچیوں کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ کہاں ہے محمد بن قاسم کے وارث، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کے جاننے والے، کہاں ہے محمود غزنوی کے ماننے والے؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ انہیں کہا نہیں، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ یہ میچوں کے اوپر تاڑیاں لگانے کے لیے ہے، یہ بیٹیوں کے رقص اور سرور کی محفلیں سجانے کے لیے ہے، یہ شراب اور کباب کھانے کے لیے ہے۔ اب ان میں کوئی بھی صلاح الدین ایوبی اور خالد بن ولید کا جانشین نہیں۔ وہ پوچھے کون ہے؟ انہیں کہا تھوڑا صبر کرو، محمد عربی کے غلام لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا رہے ہیں، تھوڑا سا صبر اور کرو، محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ آپ اور میں آج یوم تاسیس کے موقع پر حاضر ہیں اور ہمارے نہایت ہی محترم جناب ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ لاکھوں مربع میل کا کشمیر ہے، لیکن ہم شاید ایک بالش کے اوپر راضی ہو کر بیٹھے ہیں۔ قبلہ راضی ہو کر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں جب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ بات کہتا کہ اب کسی محمود غزنوی کے غلام نے نہیں آنا۔ اقبال کون سا محمود غزنوی؟ اقبال کہتا ہے وہ جس نے 16 حملے کیے سومنات کے مندر کے لیے، صرف 16 حملے، اور 17ویں باری پھر آ گیا، 17ویں باری پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ جناب محمود غزنوی آپ جتنا سونا چاہتے ہو سارے ہندوستان کا جمع کر کے آپ کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، آپ اس بت کو نہ توڑو۔ اس نے کہا میں تاریخ میں بت شکل لکھوانا چاہتا ہوں، بت فروش نہیں۔ لیکن آج جن کو ہم غیرت کا درس دے رہے ہیں وہ تاریخ میں ملت فروش کا اور ملت کے ساتھ غداروں کا اور ملت کے ساتھ بے وفائی کا ٹائٹل لکھوانا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کوئی بھی محمود غزنوی کی جانشینی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے فلسطین کی تو آج اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، آج دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آج 36 گاڑیاں آگے پیچھے ہیں۔ جی کون جا رہا ہے؟ جی یہ جناب بچوں جی فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ چیف آف آرمی ہے، یہ جناب آئی جی ہے، یہ FCIG ہے، جناب یہ DIG ہے، یہ جیل خانہ جات ہے۔ اور بھائی کدھر جا رہے ہو؟ پوچھا کشمیر جا رہے ہو؟ نہیں، ہم امریکہ اور یہود کی غلامی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کشمیر جانا ہے تو پھر 36 پیبند کندے پہ لگا لو اور فاروق اعظم کی سنت ادا کرتے ہوئے ایک بیت المال سے اونٹ خرید لو اور لے کر چلتے ہوئے بیت المقدس کی طرف جاؤ اور سامنے یہودی بڑے بڑے کھڑے ہوں اور جناب عیسائی کھڑے ہوں، بڑے بڑے ان کے عالم کھڑے ہوں اور کہیں آپ کو چابی
नहीं देनी, अपने अमीर को बुलाओ। अमीर को चाबी इस शर्त पर देते हैं, अगर मुसलमानों के सिपाहसालार बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर खड़े हो। आज भी उम्मत मुस्लिमा को बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हाथों में मिल सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह की तरह मुसलमानों के सिपाहसालार बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर खड़े हो। शर्त यह है। और अगर ये अपने महलों में और 36 गाड़ियों के कानवाई के साथ अपने जनाब मुल्क और कौम को ये बदमाशियां दिखाते हो, 57 इस्लामी ममालिक, इकबाल कहता है कि जनाब कोई कारवां से टूटा कोई बददुआ हरम से, कि नहीं है अमीर कारवां में खुए दिल नवाजी। इकबाल कहता है गिला जफाए वफानुल्लाह, हरम को जो अहले हरम से है। इकबाल कहता है 56 इस्लामी ममालिक, हर एक में सदर भी मौजूद, वज़ीर आज़म भी मौजूद, चीफ ऑफ आर्मी भी मौजूद, उनकी आर्मी भी मौजूद, सारे मौजूद। कहता है 57 इस्लामी ममालिक में कोई एक भी महमूद गज़नवी का गुलाम नहीं। और कहता है कि जो कुछ आज फलस्तीन में हो रहा है, और उनकी छोटी छोटी बच्चियां इशारा करके कहती हैं, और मुसलमानों, वो 2 अरब मुसलमानों, पौने 2 अरब मुसलमानों, 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों, जरा इधर गौर करो, ये तुम्हारा बैतुल मुक़द्दस है, ये तुम्हारा किबला अव्वल है। अगर कोई एक भी मोहम्मद अरबी का गुलाम दीन को तख्त पर लाकर किसी एक मुल्क के अंदर भी होता, तो आज फलस्तीन की बच्चियों को, आज कश्मीर की बच्चियों को ये ना कहना पड़ता कि कहाँ है मोहम्मद बिन कासिम के वारिस, कहाँ है सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानने वाले, कहाँ है महमूद गज़नवी के मानने वाले। कोई एक भी नहीं। उन्हें कहा नहीं, कोई एक भी नहीं है। ये मैचों के ऊपर तालियां लगाने के लिए है, ये बेटियों के रक्स और सुरूर की महफिलें सजाने के लिए है, ये शराब और कबाब खाने के लिए है। अब इनमें कोई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी और खालिद बिन वलीद का जानशीन नहीं। वो पूछे कौन है, उन्हें कहो थोड़ा सब्र करो, मोहम्मद अरबी के गुलाम लब्बैक का नारा लगा रहे हैं और हुजूर के दीन को तख्त पर ला रहे हैं, थोड़ा सा सब्र और करो, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। और पूरी कौम को इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। मैंने कहा है अक़लियत तो तुम पूरी दुनिया में बन के हुए हो, पूरी दुनिया में कोई अक़लियत नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी अक़लियत सिर्फ फ़लस्तीनियों की है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। हम कहते हैं, लोग पूछते थे वो जनाब कैसे मुमकिन है कि हुजूर के नवासे हो और करबला में कट रहे हो और जनाब दूसरी खामोशी से तमाशा देख रहे हो। मैंने कहा ऐसे ही है जैसे आज फलस्तीन में मुसलमान कट रहे हैं और तुम कूफियों का, हम कूफियों का किरदार अदा करके उनको देख रहे हैं। ऐसे ही कूफी भी बैठे हुए थे चुप करके, ऐसे ही कूफी भी चुप करके बैठे हुए थे कि हमने मरना नहीं, अल्लाह की कसम हम सब ने मर जाना है। अगर इज्जत से मरना है तो आज उठो। और लोग मजाक उड़ाते थे कि गौरी आया। मैंने कहा मलून, गौरी नहीं आया तो कश्मीर लुट गया ना, गौरी नहीं आया तो फलस्तीन लुट रहा है। अगर गौरी का सिर्फ मुंह भी सीधा करे तो आज फलस्तीन के अंदर बमबारी बंद हो सकती है। आज शाहीन का मुंह सीधा करे तो फलस्तीन के अंदर जुल्म रुक सकता है। और आज लेकिन बाबा जी कहा करते थे गौरी चलाने के लिए भी गैरत शहाबुद्दीन गौरी वाली चाहिए, खालिद टैंक चलाने के लिए भी गैरत और हमीयत खालिद बिन वलीद वाली चाहिए। हम किन से तवक्को लगाकर बैठे हुए हैं? इनसे तवक्को लगाकर बैठे हुए हैं जो अपनी कौम की बेटियां खुद बेच रहे हैं। हम उनसे तवक्को लगाकर बैठे हैं। बालकला फरियाद से दिल आवेज़ी अफरंग, फरियाद से शीरीनी और परवेज़ी अफरंग, आलम हमा वीराना शंगेज़ी अफरंग, मेमारे हरम बाज़ व तामीर जहां ख़ैज़। बालकला दिन में ना बोल कफन चोरों पर उम्मीदें जिन्होंने आफिया सिद्दीकी को बेचा, हमें उनसे उम्मीद है कि वो कश्मीर आजाद कराएंगे। जिसने मुमताज चौधरी को तख्तेदार पर लटकाया वो फलस्तीन का परचम मीनारे पाकिस्तान में लहरा रहा हो और कौम को गलतफहमी पैदा हो जाए कि ये फलस्तीन की बात करेगा। मैंने कहा बेवकूफ, इन तफक्कुरों से उम्मीद ना कर, खड़ा हो, हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो, मोहम्मद अरबी के दीन को तख्त पर लाए और कुवत में लाए और देख फिर रात तक फलस्तीनियों की मदद होती है या नहीं होती। फिर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगता है कि नहीं लगता। फिर तू बता बैतुल मुक़द्दस के छत पर हुजूर के दीन का परचम लगता है कि नहीं लगता। तू
तू किस गलतफहमी में बैठा हुआ है? किससे उम्मीद है? इन कफन चोरों से, इनसे उम्मीद है जो बारियां लगा रहे हैं और कौम का भी हाल कोई नहीं। और क्या जनाब हमारा फला आ रहा है और जनाब मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा फलस्तीन फतह करके आ रहा है, जेल से आ रहा है, कौम की खिदमत करके आ रहा है, वो तो वहां KFC बर्गर और जनाब मैकडॉनल्ड उड़ा के आ रहा है। ये कौम का मेहमान है, ये तो भेड़िया है, भेड़िया। भेड़िया भी जुड़ा हो जाए तो वो शिकार करता है, अंदर शिकार छोड़ देता है, अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है गारों में बैठकर। ये तो वो भेड़िया है जिसके दांत गिर चुके हैं, लेकिन कौम का खून पीसने के लिए नवाज शरीफ को फिर लेकर आए हैं। और कौम भी बड़ी सादा है, गाजी नवाज शरीफ को क्यों लाए हैं? मैंने कहा तुम्हें मैं बताता हूँ नवाज शरीफ को क्यों लाए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की गलियों कूचों में सिर्फ एक नारा लग रहा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या। कश्मीर की गली कूचों में एक नारा लग रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या। इसलिए लाए हैं कि इनके बाप अंग्रेज ने कहा है ये किधर लेके जा रहा हूं मुल्क को। एक तो वैसे बर्बाद हो गया, दूसरा जलील उसको लाकर आबाद करो, वरना बैक वाले पाकिस्तान के अंदर हुजूर के दीन को तख्त पर ले आएंगे। और अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ को लाने से बैक वालों का रास्ता रुक जाएगा, तो मैंने कहा तेरे जैसे गुमराह पड़े आए, तेरे जैसे उसका और शहबा की नस्ल में पड़े आए, तेरे जैसे यजीद पड़े देखे, दीन आकर रहेगा और मोहम्मद अरबी का दीन आ रहा है। और अल्लाह की कसम पाकिस्तान की हर गली कूचे का, हर शहर और करिया का ये समा बता रहा है कि मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ रहा है। और जहां पर कोई तिलावतें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैंने कहा ये हमें पढ़कर सुनाते हो, हमारा ईमान है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा, हमारा ईमान है। ईमान तो उनका भी है, लेकिन जिस दिन जाकर तुम गजा के अंदर उतर कर ये पढ़ोगे कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा, और अपने सिर्फ 1000 फौजी ले जाओ, ज्यादा की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम सिर्फ 1000 फौजी ले जाओ। अगर यहूदियों के पेशाब में निकल जाए तो हमें पकड़ रखते हैं, लेकिन फौजी हम तुम्हें बताते हैं फौजी किसको लेकर जाना। हाँ, हमारे कारकुनों को जेल में न डालो, नहीं चट्टे को जेल से निकालो और ले जाओ फलस्तीन। और इनको न डालो, जलीलो जाओ। ये हमारी पहली लाइन बैठी हुई है। ये दाढ़ियां सफेद न देख, ये दाढ़ियां जनाब ये न देख के ये बदन में कमजोर हैं और ये जनाब बूढ़े हो चुके हैं, तो इनकी ज़रबे हैदरी देखना तो फिर बात करना। और अभी हमारे हाथों में असरा नहीं होता, हम तो ऐसे सिर्फ हाथ लगा के नारा तकबीर